Okay. First question says what? Can I say you have to reduce the carbon-carbon double bond to a saturated molecule? Yes, ma'am. So Yes, for ma'am. that, what is the B. substance? B. B. Yes, catalytic B. hydrogenation, correct? Yes, We'll ma'am. go for catalytic hydrogenation. Hydrogen attached to C1 of methyl cyclohexane. This is methyl cyclohexane. This is your C1. Tertiary. 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 मैम क्वाaternary हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, quaternary hydrogen होता ही नहीं है. Heat of combustion per CH2 group is higher for cyclopropane than for cyclohexane. Reason क्या होगा? Angle strain and Angle torsion. strain Angle and and torsion. torsion. Yes. Can I say cyclohexane chair form में exist करता है? Yes. जिसमें angle strain भी 0 है और torsional strain भी नहीं है क्योंकि वो staggered conformation है, correct? Yes, ma'am. हाँ. Fourth question. Number of different substitution products possible when bromine and ethane are allowed to react. 9. Yes. Can I say Yes, ये ma'am, monobromo होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाइब्रोमो में 2 हो सकते हैं. कौन से 2? एक दोनों में ही कार्बन में एक और एक कार्बन में 2. अलग अलग. हाँ. तो ये विसिनल होता है और ये जेमिनल होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्राई में भी 2 हो सकते हैं. तीनों हैलोजन एक ही कार्बन पे या 2 एक कार्बन पे और एक दूसरे पे. टेट्रा also can have 2. You can have 1 on one carbon and remaining 3 on the other, And 2 or each. you can have 2 each. 2 each. One carbon. पेंटा वाला एक ही होगा. Yes, ma'am. एंड हेक्सा वाला भी एक ही होगा, करेक्ट? Yes. तो टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं, टोटल प्रोडक्ट्स कितने होगा इसमें? 9, करेक्ट? हाँ. All of you understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आपने टॉर्शनल स्ट्रेन के बारे में क्या बोला था? साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है ना? यस. और चेयर फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म है ना? मैंने उसका न्यूमेंस प्रोजेक्शन बनाया था, देखो. हाँ मैम. टॉर्शनल स्ट्रेन वहां पे 0 आता है ओके. साइक्लोहेक्सेन में. पर साइक्लोप्रोपेन में टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कैन आई से हियर द बॉन्ड्स कैन नॉट बेंड. तो ये सारे जो CH बॉन्ड्स होंगे वो एक्लिप्स कन्फर्मेशन में होंगे और एक्लिप्स कन्फर्मेशन में टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है. ओके मैम, थैंक यू. Can I clear this off? Whatever is there on the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fifth question: a hydrocarbon with molecular formula C8H18 gives 1 monochloro. These questions are to be solved by ruling out the options. Options देख के ही solve कर सकते हो. N-octane will give you how many compounds on chlorination? 4. 4. 4. हाँ, 4 देगा. 4 कैसे? 1 chloro, 2 chloro, 3 chloro, 4 Symmetric. chloro. 1 chloro, 2 chloro, 3 chloro and 4 chloro. Am I right? क्लोरीन ma'am. यहाँ आ सकता है, यहाँ 4 जगह पे आ सकता है. 4 products. 2 methyl heptane. Will it give me 1 product on chlorination? More No, than ma'am. Of course, it will give you more. Am I right? Yes. Yes, ma'am. What about 2,2,4 trimethyl pentane? ये है isooctane. Petrol. Will this give you only 1 product on chlorination? No, ma'am. More than No, 1. ma'am. No मैम. Okay. What about 2,2,3,3?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. only one. Equivalent methyl groups. Yes. Can I say in this, wherever chlorine goes, the product form will be only one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. क्लोरीन कोई भी कार्बन पे आ जाए इसमें, ये सारे कार्बन जो भी हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है सारे. So chlorine replacing any of these hydrogen will give you only one product. So answer will be option D. Did you all understand, all of you? मैम एक बार कैन यू रिपीट? आई डिडंट गेट. अरे क्लोरीन को तुम यहाँ लिखो या तुम यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कहने से प्रोडक्ट एक ही होगा. यस मैम. वही तो पूछा है उन्होंने. ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बार किए हैं क्लास में. ओके, 6th क्वेश्चन. C. C. ये तो वो फॉर्मूला से आ जाता है, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो. सपोजिंग आई टेक C2H6 reacting with oxygen to give you CO2 and H2O. अब इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, 3 वाटर, 3 नहीं, हाँ 3 वाटर होंगे. ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? X plus y by 2. इधर 4 है, इधर 3 है, so 7/2, 7/2. 3.5. तो अगर n का वैल्यू 2 है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 3n. 3n कितना होता है? 6. 6. 6 plus 1/2, 3.5. 3.5, 7 by 7/2 आ गया ना? करेक्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bromination of alkane as compared to chlorination processes. Slower. Slower. Yes, halogens का reactivity order ये होता है, लिखवाया था मैंने, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is how halogens react. The most reactive halogen is which one? F. Chlorine. Chlorine. And the least reactive is iodine. मैम उसके साथ ना आपने कुछ डार्क लाइट ये सब भी लिखवाया था. हाँ, ये डार्क में किया जाता है ना. Yes, ma'am. ओके, तो अगर Chlorination is carried out in dark, am I right? यस मैम. Yes. Because it is a very fast reaction, very highly exothermic. So we don't want any what you say, explosion to occur, no? यस हाँ. मैम. Okay, 8th question. C. Yes, could you explain me why C? We require 2 moles of the Grignard reagent for every 2 moles of the product. But in this one, ma'am, we will require only 1 because there is only 1 can be replaced. नहीं, देखो ग्रिग्नार्ड में CH3 माइनस होता है इधर, am I right? Yes, ma'am. Yes. वाटर इसको क्या दे देगा? वाटर इसको H plus देगा. Yes. तो एक Yes. वाटर और एक ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करके can I say I'll get methane? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So they react in the ratio of 1:1, correct? Because this has 1 acidic hydrogen. Got it? Yes, ma'am. This doesn't have any acidic hydrogen. So this doesn't react with Grignard. इसमें acidic hydrogen कितने हैं C में? 2. 2 हैं. एक ये टर्मिनल अल्काइन वाला है और दूसरा कौन सा है? OH. तो ये भी अपना H plus देगा, ये भी H plus देगा. तो ग्रिग्नार्ड का CH3 माइनस H plus यहाँ से भी लेगा और दूसरे ग्रिग्नार्ड का भी H plus यहाँ से भी लेगा. How many moles of methane will be formed? 2. 2. हाँ, so ग्रिग्नार्ड के 2 मोल्स लगेंगे और ये कंपाउंड का 1 ही मोल लगेगा. Got it? Because the compound has how many acidic hydrogen? 2 acidic. 2. Yes, 2 acidic hydrogen. मैम अगर D कंसिडर करते तो मोलर D रेशियो में एक ही acidic hydrogen है केवल. सो 1:1 होता ना रेशियो. हाँ, 1:1. Fine. मैम व्हाट डिड Ma'am- यू टेल फॉर द 7th क्वेश्चन? 7th किया ना, स्लो रेट होता है ना ब्रोमिनेशन. अभी तो लिखवाया मैंने ये. Bromination is slower than chlorination, correct? यस मैम. Ma'am, B won't react, right? D has acidic hydrogen.
B. हाँ, B won't react with Grignard. B doesn't have acidic hydrogen. Ma'am, I was asking, I got ki there are 2 hydrogen in C option, but why 1:2? Like 2 to okay, then why 1? CH3 to 2. Grignard to this. Grignard will be 1 mole and this will be 2 moles. Oh, acha, that way. Okay. So after reaction मतलब हर इसमें मीथेन ही बनेगा ना? हाँ, Acidic मीथेन hydrogen. बनेगा. डिपेंड करेगा ग्रिग्नार्ड का अल्काइल ग्रुप कौन सा है. ग्रिग्नार्ड में अगर C2H5 Mgr Br लिया तो क्या मिलेगा? 1:1. नहीं, Ethane. Then you'll get ethane. Yes. ये भी 1:2 में हाँ, ये 1 ethane मैम, but होगा, ये 2 मोल्स होंगे इसके. और यहाँ पर मीथेन नहीं बनेगा. प्रोडक्ट क्या आएगा? Ethane. ethane, because ये अपना H plus देगा. H plus will be taken away by C2H5 minus ना, yes ma'am. मैम. giving you ethane. Got it? तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? Same 1:2 only. But there will be 2 moles of the Grignard reagent ना? हाँ नहीं, मैम. why? क्या हो रहा है तुम लोगों को? ग्रिग्नार्ड का एक ही मोल कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ये R minus will take H to form what? RH. दूसरा ग्रिग्नार्ड भी आएगा, दूसरा ग्रिग्नार्ड भी R minus आएगा और ये H ले लेगा to give you what? I'm so 2 Alright. Grignards are RH coming, no? तो 2 Grignard हो गया ना, Grignard मैम? है, ग्रिग्नार्ड तो 2 हुआ लगेंगे ना. तो वही तो बोल रही हूँ मैं. तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैम आप तो 1 मैम, Grignard हम Ma'am, लोग बोल you रहे told थे. that ratio. 1 Grignard and 2. नहीं, ग्रिग्नार्ड 2 और ये 1 लगेगा, मैंने बोला. पिछली बार आपने उल्टा बोला था इसलिए कंफ्यूज हो गया. हाँ Yes, मैम. ma'am. ग्रिग्नार्ड के 2 मोल ही लगेंगे ना. हाँ मैम वही बोले ना. आपने Yes, ma'am, बोला I कि told. हाइड्रोजन का 2 मोल है. नहीं, sorry. 9th question. B. Can I say words B. is used for preparing symmetrical alkanes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. संकेत acidic hydrogen वो होता है which can come out as H plus ions. सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है. अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे है तो एसिडिक है. ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है उसका. ठीक है. मैम 9th में कैनॉट पूछते तो सारे बाकी के ACD अगर कैनॉट होता तो. I think 10th is simple. Give me the answer. C. C. 11th also I've done it in class. Ma'am, all. Can I say triphenyl tinhydride can reduce all the alkyl halides? Both Yes, SN1 ma'am. and SN2. I've made you write that. Am I right? Yes, ma'am. नोटबुक खोल के किया होता तो सब ऑलमोस्ट सारे हो गए होते, एक दो छोड़ के. Did you all open the notes and keep? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Give me the percentage of this compound. 12th question. 100%. 100%. 100%. इसका कैसे आया 100%? 3 Can I? 3 डिग्री का हाँ, can I say 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3 डिग्री का? highest. हाईएस्ट है Highest, ma'am. Can I say 1600 times more reactive than 1 degree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम I've given you these values. Do you remember? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes. 13th का आंसर दो. B. B. Methane, ma'am. Methane. Decarboxylation with soda lime will give you methane here. ये Ma'am, stepping because- down the carbon chain है. कितने कार्बन है यहाँ पर? Two. You will get methane. Ma'am, One can carbon. you do the reaction once? This is soda lime. So this comes out as Na2CO3 और ये H जाता है इसके साथ. And you get sodium carbon, methane and sodium carbon. समझा के नहीं? Yes, ma'am. Yes, Ankush, the 12th one is regio specific.
Aditi, what do you want me to repeat in 12th? How many tertiary hydrogen are there in this compound? There is one tertiary और उसका reactivity 1600 है. How many primary hydrogen? 9. और उसका reactivity कितना है? 1. Total reactivity of the molecule. 1609. और उसमें 106. से tertiary का कितना होगा? Do this calculation, you'll get your Approximately 100. answer. कितना आ रहा है आंसर? 100. Got it? आदिति, ये क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने. यार तुम लोग सब प्लीज नोट्स रेफर करना चालू करो बिफोर इट इज टू लेट. Notes are there with you or you all have sold it? Tell me the fact. Tell me the truth. है मैम नोट्स? है ये मैम. बेच दिया है कहीं पे? हम कौन लेगा? तो क्या करते हो तुम लोग? नोट भेलपुरी वाले को दे दिया होगा ना, नीचे भेलपुरी वाला बना रहा होगा भेल उसमें. मैम वो भी नहीं लेगा. उसको तो भेल डाल के बेचना है, पढ़ना थोड़ी है उसमें. नहीं, मैं तो फ्रेम करके रखने वाला हूँ. कोविड मैम, कोविड. हाँ तो इसलिए तुमसे ही मांगता होगा वो पेपर्स. अरे मैम वो लेगा ही नहीं ना, वो देखेगा ना पहले पेपर इतना बकवास है, लेगा ही नहीं. पेपर बकवास भी है. लगा होता है. अरे उसमें बहुत Ink लिखा लगा है ना, होता है. हमने बहुत लिखा है ना, वो डर जाएगा देख के. एक सेकेंड. Yeah. We were doing now. 13th is over. 14th question. Ethane. Yes, ethane will have the least hindered rotation. Can I say ethene में double bond होगा यहाँ पर? Yes ma'am. Acetylene, Yes. ethyne में triple bond होगा. And hexachloroethane. Hexachloroethane में भी hindered rotation होगा. Could you tell me why hindered rotation? High steric hindrance. Will this prefer to stay in the staggered conformation or will it rotate to नहीं, रोटेट नहीं होगा. give the eclipse form? स्टैगर्ड में ही रोटेट रहेगा. नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वरना ये क्लोरीन एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा. कहना है ये बल्की एटम्स है बहुत. Yes. Yes, ma'am. So it will not try to go into the eclipse form. मतलब there will be hindered rotation across the single bonds. So minimum hindered rotation will be in ethane. Ethane में freely move होगा bond. Okay, give me the मैम 15th. हर अल्केन के लिए ये पॉसिबल है, हाँ. फॉर एवरी अल्केन. Yeah. Okay. 15th question का answer. B. बी. 2 degree will be major, 1 degree will be minor. Am I right? Yes ma'am. Yes, ma'am. और रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है. ये तो रीअरेंज प्रोडक्ट है. रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है मॉलिक्यूल में, क्योंकि कौन सा मैकेनिज्म है यहाँ पर? फ्री रेडिकल. Free हाँ, radical. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में नहीं होता है रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट सिर्फ 3 इंटरमीडिएट्स में देखा गया है. दैट इज कार्बोकटाइन, कार्बीन एंड नाइट्रीन.
बस यहीं पे रीअरेंजमेंट होता है। नाइट्रीन भी सिर्फ, कार्बिन और नाइट्रीन भी सिर्फ सिंगलेट, ट्रिपलेट में नहीं होता है, बिकॉज रीअरेंजमेंट होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। कैन आई से कार्बोकटायन में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है एक कार्बन के पास? Yes, ma'am. यस मैम। वो कार्बिन में भी होता है, सिंगलेट कार्बिन में भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, करेक्ट? हाँ और सिंगलेट नाइट्रीन में भी नाइट्रोजन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो जहां जहां एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है वहीं पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। कैन अ फ्री रेडिकल हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल? No, ma'am. No, ma'am. No, So ma'am. free radicals don't rearrange. Fine. Rearrangement is observed only in carbocation, singlet and triplet nitrines. Okay, I think 16th is simple. Class में किया है मैंने. Toluene. Toluene. Give me the answer for 17th. Ethane. Yes. Ethane. Water will give its H plus to this, and you'll get ethane. Water protic solvent है. Correct? Yes, ma'am. Give me the answer for 18th. B. 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 ये तो एकदम बोलते हैं ना piece of cake है ये exercise. यस मैम। कुछ डाउट आया क्या इसमें भी? Give me the answer for 19th. A. B. A. Free radical होगा ना? Yes, ma'am. B. 20th. Isobutane. D. आइसोब्यूटेन। Isomerization reaction, correct? यस मैम। 21st. ए। Yes, CH bond will break faster than CD bond, correct? Yes, ma'am. यस मैम। Then coming to question number 22. मैम 21 में वो रेशियो है ना 1716 का। हाँ, क्योंकि उसमें rate determining step is the breaking of the CH bond. तो वो रेशियो वहां पे यूज करोगे. CH bond will break 7 times faster than CD bond. Okay. 22nd question. D. D. हाँ, you have to explain why D. Deuterium है इसीलिए. Ma'am, the rightmost will be optically active. Chiral carbon. हाँ, can I say जब इधर हाइड्रोजन ऐड होगा तो I'll get what? I'll get इधर इथाइल ग्रुप हो जाएगा ये, और यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या हो जाएगा? CDH हो जाएगा और CD2H. and CD2H. Can I say ये अभी भी chiral है? Yes. Yes, ma'am. Yes. So answer will be option D. Uh, 23rd question, I'm solving it. You have methanol reacting with this. Can I say methanol protic है? Yes, ma'am. ये अपना H plus इसको दे देगा. Negative charge है कार्बन पे. H plus and CH3 minus will combine to give you what? Methane. मीथेन। I have how many ml of methane gas at STP? 1.0। 1.04. 1.04 ml divided by 22400. Can I say this will give me the number of moles of methane? Yes, ma'am. यस So मैम। can I also say that will also be the number of moles of methyl alcohol? Why it will be the number of moles of methyl alcohol? Because 1 mole of this will One combine mole with 1 with mole one of mole. this, correct? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो methyl alcohol के भी इतने ही moles है, 1.04 divided by 22400. ये तुमको मिलेगा moles. This you have to multiply by the molecular mass of methyl alcohol. So you will get the mass. इसका molecular mass क्या होगा? 32. हाँ, into 32. That will give you the mass of methyl alcohol. समझा? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. जो भी आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है इसका आंसर? 1.485 A. Okay.
Did all of you understand this? Yes, ma'am. मैम हाँ, tell me. मैम वो लास्ट इक्वेशन को 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना? क्यों? बिकॉज इट्स एन mg. ये डायरेक्टली आपको mg में आ जाएगा ना आंसर. ओके ओके मैम. If you want it in grams, then you'll have to divide by 1000. ये कहना है ये मैंने ml लिया है यहाँ पर. Yes, ma'am. हाँ, तो मिलीग्राम में ही आएगा आंसर. 24th question. You want cyclobutane. What if I start with hexane dioic acid? This is hexane dioic acid. इसका पोटेशियम सॉल्ट लेना है आपको. वेट आई एक कार्बन कम कर दिया मैंने. इसका जब पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, कैन आई से यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनेंगे? Yes, ma'am. यस. तो ये फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट क्या आएगा? Cyclobutane. Cyclobutane. So first option is only giving you the answer directly. Got it? Yes, ma'am. समझा कि नहीं समझा? समझा मैम. हेक्सानोइक एसिड क्या देगा? Can I say यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड? Decane. Decane. यू विल गेट डेकेन. ऐसे दो फ्री रेडिकल्स ज्वाइन करके यू विल गेट डेकेन. करेक्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ब्यूटेनोइक एसिड विल गिव यू व्हाट? Hexane. हेक्सेन. यस. Same. ट्रांस ब्यूटीन डायोइक एसिड. ब्यूटीन डायोइक एसिड ये होता है. ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा? Ethyne. Thine. यस. ये ट्रांस ब्यूटीन डायोइक एसिड इज फ्यूमेरिक एसिड. फ्यूमेरिक ले लो या मैलिक ले लो, इट विल गिव यू इथाइन. दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन. करेक्ट? मैम बोलो. मैम हेक्सानोइक एसिड का कैन यू एक्सप्लेन अगेन? दिस इज द हेक्सानोइक एसिड. इसके दो मोल्स रिएक्ट होंगे. ये फ्री रेडिकल बनेगा ना, ये वाला पेंटाइल फ्री रेडिकल. यस मैम. दो पेंटाइल फ्री रेडिकल्स कंबाइन होकर डेकेन देंगे. ओके मैम. Did you all understand, all of you? Can I clear this off? Yes, ma'am. Last question. Heat of combustion. Heat of combustion is inversely proportional to stability. Do you agree? Yes, ma'am. तो अभी इसमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे. तुम लोग ने चेयर कंफर्मेशन लिया ही नहीं होगा. आई एम श्योर अबाउट इट. इसमें साइक्लोहेक्सेन में हमेशा चेयर कंफर्मेशन लेके आंसर निकालना है. अब दिया है सिस और ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अब अगर एक मिथाइल एक्सियल है और दूसरा इक्वेटोरियल है, ये कौन सा फॉर्म है? सिस है या ट्रांस है? Trans. अरे एक्सियल ऊपर है तो इधर इक्वेटोरियल ऊपर होगा ना नेक्स्ट कार्बन पे. Cis. तो ट्रांस कैसे हुआ ये? ये दोनों इक्वेटोरियल है. कौन सा फॉर्म है? Cis. ये सिस है. Trans. Why is this trans? एक आगे तो एक Both पीछे. are ma'am. equatorial. Can I say अगर फर्स्ट कार्बन पे एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल नीचे होता है, हाँ मैम. तो सेकंड कार्बन पे एक्सियल नीचे होगा, इक्वेटोरियल ऊपर होगा. सब हाँ, मैम. भूल गए हो.
सब एक साथ भूल जाओ तुम लोग. Forget everything now. Everything you'll forget. Whatever we have done. What is going wrong here? ये कौन सा फॉर्म है? 30. इनमें से स्टेबल कौन सा है? Transfer. Trans. Trans. Why is the trans one more stable? Because bulky groups and equatorial positions. are more Bulky stable. group should occupy equatorial positions. Are both the bulky groups in equatorial position? Yes. So here trans is more stable. ये stability order है. तो heat of combustion का order दो. cis का ज्यादा. Is greater than Yes, trans. हाँ तो पहले वाले में cis का ज्यादा है. समझा? Yes, हाँ ma'am. या ना? Yes, ma'am. तो ऑप्शन ए या सी में से ही हो सकता है. क्यों? Because this has more heat of combustion. Yes. Now going for the second part. You have 1,3-dimethyl cyclohexane. 1,3. ये अगर एक्सियल में लिया मैंने और ये इक्वेटोरियल में लिया, ये कौन सा फॉर्म है? Trans. ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लिया है मैंने. Cis. इसमें कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? Cis. Cis. Yes. This is the stability order. Give me the heat of combustion. Trans more than cis. Trans. Trans more than. Cis. Cis. तो वैसे आंसर कौन सा आ रहा है इसमें? First option. First. Yes. I'll show it for the last one also, third one also. 1,4-dimethyl cyclohexane. अगर एक मिथाइल नीचे लिया है, इसका दोनों का इक्वेटोरियल में लिया है, तो ये कौन सा फॉर्म है? cis form. ये cis फॉर्म है. तुम लोग को देखने से भी मॉलिक्यूल को मालूम नहीं पड़ रहा है कुछ भी? The first one is cis. मतलब देखने से भी नहीं पता पड़ रहा है, तो भी बड़ी अजीब चीज आ रही है अभी दिमाग में मेरे. ये मिथाइल ऊपर जा रहा है और ये मिथाइल कहाँ जा रहा है? ऊपर. ऊपर. तो कौन सा फॉर्म हुआ ये? Cis. Cis. ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर. तो कौन सा फॉर्म है ये? Trans. 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 Do you remember what is cis and what is trans? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ. Trans more than cis. Trans more than. ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा? Cis more than. कैन आई से आंसर इज ऑप्शन ए. Yes, ma'am. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, why haven't we considered axial व्हाई हैवंट वी कंसीडर? when both of them are in A? Me, I'm not able to get you. Please say a little louder. Ma'am, when both the methyl groups are in axial position, why haven't we taken that? Will the okay? Why I haven't taken that? I'm just telling you now. Say I'm taking this first one, 1,2-dimethyl. Can I say both are in axial here? Yes, ma'am. और ये कौन सा फॉर्म है उसका? Trans. ये भी ट्रांस है उसका और ये भी ट्रांस है उसका. Yes. मॉलिक्यूल कौन सा फॉर्म प्रेफर करेगा? दोनों E जिसमें है. ये बिल्कुल प्रेफर नहीं Both करेगा E. वो. क्यों प्रेफर नहीं करेगा? Bulky groups in axial position. दोनों बल्कि ग्रुप्स एक्सियल में है. विल इट प्रेफर दैट फॉर्म?
No, ma'am. No, It will ma'am. prefer these two forms. Am I right? उसमें से Yes. भी ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा. ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? Both are in equatorial. Did you get that? Yes, ma'am. Now I go for 1-3. कौन सा फॉर्म है ये? Cis. Will the molecule prefer this form or this form? The both equatorial. तो ये फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा. Am I right? Yes. अब 1-4 में जाते हैं. ये कौन सा फॉर्म है? Trans. ये ट्रांस प्रिफर करेगा वो या ये ट्रांस प्रिफर करेगा? समझा अभी? Yes, ma'am. इसलिए वो मैंने ए वाला लिया ही नहीं. गॉट इट? क्योंकि मॉलिक्यूल ए में जाएगा ही नहीं, ज्यादा देर रहेगा ही नहीं. वो ए फ्लिप होके वो किस में चला जाएगा? E. हाँ, ई में चला जाएगा. समझा? So, ma'am, in all the conditions, AA will be the least stable, right? Yes, yes. No, I didn't say all conditions. इसमें AA will be more stable. Why AA will be more stable? Hydrogen. Hydrogen. bond. Hydrogen bond. Don't make hard and fast rules in organic. Organic में ma'am, तुमने I mean- एक रूल बनाया तो दूसरा मॉलिक्यूल वो तोड़ देता है. समझा? Yes, ma'am. ठीक है. Exercise 1 is done. Except for the last question जो तुम लोगों को दिक्कत आई. बाकी तो I think everything was simple, correct? जवाब भी नहीं आएगा सामने से. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That means remaining 24 questions you all got the answers? नहीं. Not नहीं, all. ma'am. Most. Not all. एक क्वेश्चन डाउट थे. कौन सा वाला? डाउट तो आने नहीं चाहिए अभी. अभी ऑर्गेनिक फटाफट हो जाना चाहिए क्वेश्चन. Now you all are becoming क्या बोलते हैं? Matured in this subject. Okay. चलो हैलोजन के बाद तो I think things will go very smooth. हैलोजन के बाद your understanding of organic will become much better. ठीक है, let us do it. डिसलेक्सिया फील जाता है कभी कभी. क्या? डिसलेक्सिया जैसा लगता है सब देख के कभी कभी. क्या लगता है? डिसलेक्सिया जैसा. डिसलेक्सिया? बाप रे. मतलब मैं मुझे है डिसलेक्सिया? नहीं मैम, मैम, हमें आपको लग नहीं, नहीं मुझे- मैम, वो मुझे लगता है डिसलेक्सिक ऐसा. है. मैं हूँ मैं- नहीं, मुझे लगता है ऐसा. मैं 28 साल से मतलब पढ़ा क्या रही हूँ ये चीज. 28 साल हो गए मुझे. हमारा पहला साल है मतलब. और हाँ, मैं पहले- खुद भी पढ़ी हूँ ना पहले. ये सब खुद भी तो मैंने पढ़ाई की है कि नहीं की है? Yes, तो मेरे और उसके गिनो कितने साल? बहुत सारे. 11th में ऑर्गेनिक चालू हुआ था. 11th 12th ये 2 साल हो गए. फिर 3 years ऑफ ग्रेजुएशन. सो ये हो गए 3 years मोर. सो 5 years. पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल और पीएचडी के 2.5 साल और. कितने हो गए? इधर 2 और 3 5 5 और 2 5.5. 9.5. 5 और 2 हो गए 7 7 और 2 2.5. 9.5 9.5 साल years में खुद ऐसे पढ़ी हो हूँ गए. ऑर्गेनिक. बाप रे मैम. हैट्स ऑफ मैम. और उसके बाद 28 साल से पढ़ा रही हूँ. मैम लेकिन एक शिकायत है कि हाँ, मतलब बोलो. अगर मॉलिक्यूल्स ने कोई रूल तोड़ दिया तो वो तोड़ दिया, मतलब वो ब्रेक हो गया. पर यही चीज अगर इनऑर्गेनिक में हो गई तो वो एक्सेप्शन में डाला जाता है. तोड़ा नहीं है माय डियर. तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है. अगर मॉलिक्यूल में अब वापस से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हाट यू हैव आस्क्ड एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली अगेन.
अब इन दोनों में से कैन आई से ये मॉलिक्यूल बिल्कुल अनस्टेबल होगा यस मैम। क्योंकि इनके बीच में रिपल्शंस होंगे। हाँ। इसमें जब अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है तो व्हाई हम्म। वुडंट इट प्रेफर द एक्सियल फॉर्म? क्यों जाएगा वो इक्वेटोरियल में अगर वो एक्सियल में उसका एक और बॉन्ड बन रहा है? कैन आई से when bonds are formed, energy is released? Yes, ma'am. यस So if a मैम। hydrogen bond is formed, can I say energy would be released here? यस। So why Yes. would it prefer this form rather than going for this form? तो ये वाला फॉर्म उसका स्टेबल है, It लेकिन वो is जो your दूसरा understanding which has to come into picture. Molecule has to behave. Are you understanding? यस Yes, ma'am. Molecule wants to lower its energy. तुम कैसे बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल को तो ये फॉर्म में एग्जिस्ट करो राइट वाले में? क्योंकि ये फॉर्म में उसका लोअर एनर्जी है. इट इज ओबेइंग द रूल्स. It Basically, has to उसका lower आराम its energy, and if it has to lower its energy, it will be more stable in this form. Got it? Yes, ma'am. तो मैम उसका जो ये दूसरा form फॉर्म में आपने जाएगा. अब लिखा है, मिथाइल क्या बोल रहे हो? जो दूसरा फॉर्म आपने लिखा है वो अनस्टेबल तो नहीं बोलेंगे ना उसको? बट इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। सो इफ द मॉलिक्यूल कैन फ्लिप, ये फ्लिपिंग प्रोसेस में तो कैन आई से एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल हो जाते हैं. हाँ। तो ये इक्वेटोरियल में से जब वो फ्लिप होगा एक्सियल में जाएगा तो कैन आई Yes. से जब एक्सियल में जाएगा इट विल बिकम मोर स्टेबल. हाँ यस मैम, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। हाँ, because it will start losing out some energy because of a new bond being formed. यस। So it will prefer this form only ना. यस मैम। अब ये जब एक्सियल वाला फ्लिप होगा यहाँ पर इक्वेटोरियल में फ्लिप होगा, कैन आई से इक्वेटोरियल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच का रिपल्शन कम हो रहा है. मिथाइल ग्रुप्स का रिपल्शन कम हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा उनसे. हाँ तो वो ये फॉर्म प्रेफर करेगा ना. ये क्यों प्रेफर करेगा वो? समझा? समझा। Molecule is obeying. It is our understanding which has to come into that way. समझा? यस मैम। सो और ये मतलब कोई भी टेबल में इनऑर्गेनिक में हम इतने सारे रूल्स लगा के प्रूव क्यों नहीं करते कि भाई ये इनऑर्गेनिक में exception तुम नहीं है? रूल्स भी लगा दोगे, कुछ भी लगाओगे, यू कैन नॉट से कि ऐसे क्यों हुआ है. गॉट इट? ओके। यहाँ पर तो तुम्हारा एक रूल सिंपल है कि मॉलिक्यूल को अपना एनर्जी लो करना है तो किस फॉर्म में जाके लो करेगा. दैट इज एज सिंपल एज दैट इज. वो हम एक रूल बना देते हैं कि नहीं इक्वेटोरियल स्टेबल होता है. समझा? यस ये हमारा एक हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाता है कि नहीं इक्वेटोरियल स्टेबल है. बट व्हाई? बिकॉज इफ द मॉलिक्यूल कैन गेट स्टेबिलिटी इन एक्सियल इट विल डेफिनेटली ट्राई टू गो सो. हमने ये भी रूल एक बना दिया कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है बोर्ड फॉर्म से. एम आई राइट? यस। बट वैसे भी नहीं है. ऐसे चेयर फॉर्म के भी मॉलिक्यूल, जैसे अगर इसका चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म लिया, इसका बोर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है. फिर से क्यों बोर्ड फॉर्म स्टेबल होगा इसमें? क्योंकि अगर वो चेयर फॉर्म में गया तो 1,4 पे जो तो OH है ये हो गया एक्सियल. एम आई राइट? और ये हो गया एक्सियल इक्वेटोरियल. यस मैम। और ये हो गया इक्वेटोरियल. इन तीनों में वो एच बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा. गॉट इट? हाँ। बट अगर वो बोट में गया 1,4 डायोल तो डेफिनेटली इट कैन फॉर्म दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो इट विल प्रेफर दिस बिकॉज इस फॉर्म में उसका एनर्जी लोअर है. करेक्ट? यस मैम, गॉट इट। हाँ. जैसे आप even you are studying for a target. Am I right? You are Yes, studying to ma'am. achieve a target. Different people will try out different techniques of studying to achieve that same target. Do you agree to this? Yes, ma'am. Yes, The same way different Yes. molecules will try out the same different what you say methods, or it will try to go into that form in which it will try to gain more stability. As simple as that. Is this clear now in your mind? यस मैम। तो अगर तुम सोच रहे हो कि वो वैसा होना चाहिए तो you are thinking it exceptional way. Why would the molecule prefer that? My molecule is going to prefer in what form it is low. It's lowering its energy. ठीक है? मैम बेसिकली मॉलिक्यूल को आराम की जिंदगी चाहिए. 100% जैसे तुमको चाहिए.
बस वो जल्दी कर सकते हैं, हमें तो बहुत हमें हमें मिलती नहीं मिलती है। नहीं है, रुकना उसको पड़ता है। मिलता तो है। हाँ, तुमको क्या करना पड़ता है? उसको मिलती नहीं है जिंदगी, उसको मिलती है। हमारा तो आराम मॉलिक्यूल्स मिलता नहीं है मॉलिक्यूल्स उसको। हमारे जैसे नहीं है ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर टेंशन नहीं होता है ना जैसे हमारे अंदर होता है। हमारे जिंदगी में तो दर्द वो होता कुछ भी करके अपना एनर्जी लोअर करने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? यस मैम। हाँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, होम असाइनमेंट 2। Snehal, organic chemistry is lovely. You will start liking it. Don't worry. It is not a nightmare. Okay. शुरू में you are learning the concepts, इसलिए आपको दिक्कत आती है सारी। धीरे धीरे जब कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं तो तुमको खुद ही समझेगा कि ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं ऐसे पेश आएगा। समझा? इनफैक्ट इट इज सो ब्यूटीफुल, यू कैन प्रिडिक्ट कोई मॉलिक्यूल आपने देखा नहीं है तो भी आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये इसका रिएक्शन होगा तो ये कैसे क्या बनने वाला है इसमें। अभी आप जस्ट स्टार्टेड विद हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट टाइम आई जस्ट स्टार्ट, मतलब इसके बाद वाला चैप्टर होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में आई डू ऑल कंपाउंड्स विद हैलोजन हैविंग द हैलोजन एज द फंक्शनल ग्रुप। एम आई राइट? उसके बाद अल्कोहल्स चालू होगा। फिर जब पॉलीफंक्शनल चालू होगा, पॉलीफंक्शनल मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स और मैं उसमें एक रिएजेंट ऐड करती हूँ, तो यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि वो रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करने वाला है और दूसरे पे क्यों नहीं हो रहा है। you will be able to predict all that, and that is the beauty of organic chemistry. You don't have to cram up, you will easily understand कि इधर रिएक्शन होगा, ये पार्ट में मॉलिक्यूल के होगा, वो पार्ट में क्यों नहीं होगा, उसका रीजन भी आपके पास होगा। समझा? यस मैम। ठीक है। हाँ, यू कैन प्रिडिक्ट ऑर्गेनिक, जो आप कहीं और नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि स्टेप वाइज जाते हैं, जैसे मैथ्स होता है ना वैसे ऑर्गेनिक वैसा ही होता है सेम। Okay, reaction of bromine with ethene. इथीन में ब्रोमीन करोगे तो क्या बनना चाहिए? Can I say ब्रोमीन ऐड होता है इसमें? Yes, ma'am. अच्छा, पहले तो can I say it will go through a cyclic bromonium ion? You remember the mechanism? यस मैम। Yes, ma'am. Br plus और ये Br minus बनेगा। But can I say इसमें थोड़ा salt भी added है? यस मैम। तो salt will give you what? Cl minus. Cl minus is also available, Br minus is also available. इन दोनों में से stronger nucleophile कौन सा है? Cl. Cl minus। Cl Can I say HCl is a weaker acid? Yes, ma'am. मैम क्या HCl is a Then weak? HBr. हाँ Weaker yes acid than HBr. yes Yes or no? yes Do you know this that HI is the strongest halogen acid? yes मैम। Yes, ग्रुप ma'am. जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे एसिडिटी बढ़ती है। हाँ, तो can I say HCl is a weaker acid than HBr? और ये weaker acid है तो Cl minus will be a stronger nucleophile. Got it? So it will prefer attacking the carbon. Br नहीं अटैक करेगा, Cl करेगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें? Option B. B. हाँ, did you get this? समझा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, this will be formed, this will be minor, and this will be what? Major. Major. What they have asked here? Mainly मतलब क्या? Major. हाँ, Major. got it? Yes. Now propylene is nothing but propene. Chlorine at 500 degrees Celsius. Can I say I'm not adding any solvent here, but I'm just heating it at 500 degrees Celsius? So heating of this, अगर हम halogen लेते हैं, उसको light देते हैं या heat देते हैं, how would I expect this bond to break? Homolytic. Homolytic. तो प्रोपीन में attack, alkane react. Will the alkane part react or the alkene part react? Alkene. Alkene पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, Alkane part will react. Alkane. ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल अल्केन पार्ट पे जाएगा ना,
हाँ yes Yes, ma'am. और अल्केन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, है राइट? yes ma'am फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है इधर? इसको बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? allyl chloride देखो दिया भी है, अलाइल क्लोराइड इज फॉर्म। Mechanism of this reaction, you give me the mechanism now. Free radicals. Free radical substitution, correct? yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मुझे क्लोरीन डबल बॉन्ड पे चाहिए ऐड करने के लिए, तो व्हाट आई शुड, आई टेक क्लोरीन इन अ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? CCl4 और CS2। इस सॉल्वेंट में ये क्लोरीन ब्रेक होता है Cl प्लस और Cl माइनस में, फिर Cl प्लस अल्कीन को अटैक करके साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर पाई बॉन्ड पे एडिशन चाहिए तो सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, मगर इफ यू वांट द सिग्मा बॉन्ड्स टू रिएक्ट हियर, ये वाला अल्केन टू हियर, देन यू हैव टू टेक क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, और यू कैन टेक क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Ma'am, please wait. हाँ, मैम ब्रीफ में एक बार और कैन यू एक्सप्लेन? if I want the addition of chlorine on the pi bond, pi bond पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना राइट? यस मैम। तब मुझे क्लोरीन लेना पड़ेगा CCl4 या CS2 में। यहाँ पर क्लोरीन विल ऐड टू द अल्कीन, और and if I want the alkyl part to react, that means I need to have chlorine free radical. How will chlorine free radical be formed? By heating chlorine at high temperature, or you can also use light. Here the bond will break homolytic. Homolytic will, that means alkane part will react, not the alkene part. Did you understand this? यस मैम। Are you able to hear me? Your voice is cracking. क्रैक होता है It बीच बीच in हाँ, ma'am. between हो रहा है थोड़ा। बहुत crap Yes, ma'am. It's cracking. तो ये अभी पूरा सुना ही नहीं तुम लोगों ने? नहीं नहीं सुना पूरा मैम। नहीं सुना अब कौन सा पार्ट मिस हुआ? डबल बॉन्ड पे एडिशन चाहिए तो क्या करोगे? solution हाँ, और अगर अल्केन पार्ट पे रिएक्शन चाहिए तो क्या करोगे? heat हीट या तो लाइट। समझा? yes ma'am Yes, ma'am. मैम सॉल्यूशन वाले पार्ट में भी पहले Cl जाके एल्केन पे ही अटैक करेगा ना? अरे वहां पर Cl प्लस बनता है ना, तो वो अल्कीन पे अटैक करेगा ना, कि अल्केन पे जाएगा? अल्केन पे कौन अटैक करता है? Free radical. फ्री रेडिकल पर यहाँ पर क्या बना है? Cl प्लस तो Cl प्लस आके इसको अटैक करेगा और साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा कि नहीं? यस मैम समझा अभी कि नहीं समझा? हाँ समझा आयंस बनने के लिए लिक्विड चाहिए जरूरी, गैसियस स्टेट में आयंस नहीं बनते हैं। डू यू एग्री? यस मैम अगर आपने क्लोरीन गैस लिया है 500 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरीन गैस बनता है, तो इसमें बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा क्लोरीन का? Homolytic. होमोलिटिक हाँ, फ्री रेडिकल बनेगा। मगर मैम आयंस गैसियस स्टेट में समझा एग्जिस्ट नहीं नहीं समझा कर अभी? मैम बोलो। मैम अगर आयंस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, सो लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते वक्त हम ऐसे बोलते हैं ना कि गैसियस फॉर्म्स में डिफाइन करते हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। सोडियम कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, बट हम गैसियस कंसीडर एक करते हैं ना। सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे कंप्लीट करने दो। मैंने इसको हीट करना चालू किया तो क्या होगा? लिक्विड और हीट किया तो क्या होगा? गैस Yes. कहना है से सोडियम गैसियस फॉर्म में चला जाएगा।
यस Yes, मैम। ma'am. उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? Sublimation, enthalpy, उसके बाद और हीट दिया मैंने, तब क्या होगा? ionization. अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, यस मैम। Yes, ma'am. इसको क्या बोलते हैं? Ionization. आयनाइजेशन एनर्जी। वो इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं ज्यादा, क्योंकि गैसियस फॉर्म में आयंस रहते ही नहीं है। फिर ये Cl माइनस के साथ नजदीक आने लगेंगे ये दोनों MRI, यस मैम। और So, क्या ma'am, बन अगर जाएगा? NaCl। so, ma'am, अगर हम सिर्फ Na को हिट करते विदाउट क्लोरीन इन द एनवायरनमेंट तो रिएक्शन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, Na+ बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा? तो कितना भी हिट दो Na गैसियस नहीं रहेगा। दोनों को मिक्स करके करना पड़ेगा ना तुम लोगों को, इसमें लाइक क्योंकि अगर अगर सिर्फ अरे सुनो तो सही, Na अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना भी चाहिए सामने, के नहीं होना चाहिए यस मैम होना चाहिए। कि इलेक्ट्रॉन हवा में उड़ते रहेंगे ऐसे गैसियस फॉर्म में, नहीं मैम। और So, तुम अगर देखना फिर उनको उड़ते हुए। नहीं मैम, सो अगर Na को इनर्ट एटमॉस्फेयर में हिट करेंगे तो Na गैसियस पे आके रिएक्शन रुक जाएगा ना। गैसियस स्टेट में ही रहेगा बस। इलेक्ट्रॉन ma'am. किसको दे सकता है? वो कोई लेने वाला भी तो चाहिए सामने। यस मैम। गॉट इट? क्या दूसरा Na इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा ना उससे? एक Na अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो क्या दूसरा Na लेगा उससे इलेक्ट्रॉन? नो मैम। क्लोरीन ही आके ले सकता है ना, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करे। सोडियम कैन नेवर गिव इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज जस्ट sodium can give electron in ammonia. Do you know this? लिक्विड अमोनिया में दे सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स, ये पता है कि नहीं? Have you all done S block? No, ma'am. उसमें वो Na+ की जैसे रहता है, और उसमें अमोनिया के उसको सॉल्वेट करता है। डू यू नो व्हाट इज सॉल्वेशन? Do you know what is solvation? See, all these are very important concepts. Of course, you'll be doing this in S block. Hydration सुना है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाइड्रेशन में क्या होता है? What the molecule surrounds. तो वो सॉल्वेशन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, समझा? और ये इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का, वो इस फॉर्म में रहता है। इलेक्ट्रॉन भी सॉल्वेटेड रहता है। अमोनिया का कौन सा एंड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन एंड, करेक्ट। बट फिर भी सोडियम ने कौन किस में दिया? डिड इट गिव द इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट? इट इज गिविंग इन लिक्विड अमोनिया, समझा? तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन सा स्टेट चाहिए होता है? You're not understanding what I'm saying? Liquid state. वो गैसियस फॉर्म में दे देगा इलेक्ट्रॉन, पर ये गैसियस फॉर्म में रहेगा नहीं उसके बाद। क्यों नहीं रहेगा उसके बाद? क्योंकि Highly वो unstable. किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। डू यू एग्री? Yes. और जब पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक आने लगेंगी तो स्टेट चेंज हो जाएगा इमीडिएटली। गैसियस फॉर्म में कभी कटायंस अनायंस रह नहीं सकते हैं ऐसे। इज दैट क्लियर नाउ? Yes or no? No answer only. Yes, How ma'am. do I understand whether it is you are understanding or no? My voice is clear or no? First of all, is that question. You all can hear me? Yes ma'am, yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गैसियस स्टेट में आयंस क्यों नहीं बनते हैं? सुना कि नहीं सुना? सुना मैम। गैसियस स्टेट के जो आयंस होते हैं वो नजदीक आने लगेंगे कि नहीं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे ना उनमें, प्लस और माइनस में। Yes. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे ही चालू होंगे स्टेट चेंज हो जाता है उसमें, ठीक है? आयंस वैसे रह नहीं सकते हैं गैसियस स्टेट में। फाइन, नाउ second question is done. Third question. Ethene can be prepared by dehydration of ethanol. We have done this, correct?
we use concentrated H2SO4. What product will I get? Elimination okay, ethene बनता है, correct? Yes, ma'am. Is my voice clear? Yes, ma'am. Okay. Ethene can be prepared by dehydration of ethanol. Which of the following conditions will not favor the formation of ethene? इसमें मैंने एसिड कौन सा लिया है? Concentrated H2. So can I say I need large amount of sulfuric acid? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I say ये elimination है? तो Yes. टेम्परेचर क्या होना चाहिए? Hi. Hi. तो ये दो कंडीशंस तो रिक्वायर्ड है मुझे. Am I right? हाँ. But what about this condition? Let me explain this now. इसका मैकेनिज्म क्या होगा? Can I say पहले अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा वो एसिड. प्रोटोनेशन में चार्ज क्या आएगा यहाँ पर? 500 क्रॉस किया फाइनली. Can I say water will leave out? Rank में देखो मैंने small squid. What charge will Yes, the ma'am. carbon get? 118 ही देख रहे हैं उसके अंदर लोग कितने मेहनत कर रहे Plus. हैं. 47 जब स्लिप होता है 118 आ गई. मैम किसी का माइक ऑन. Someone's mic is on. आर्यन का है. है कि नहीं? Okay. Can I say यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा? अब बाजू वाले कार्बन से H निकलना है. Am I right? बट अगर आपने अल्कोहल बहुत ज्यादा डाला है तो अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? Carbocation. कार्बोकटाइन पे. तो ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बोकटाइन पे. अब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा उसकी वजह से? Positive. फिर ये अपना H प्लस दे देगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? What is this product form? Ether. अरे फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया है? Ether. So if you use excess of alcohol, what is the product formed here? Ether. Can you get ethene if you Ether. use excess of alcohol? No, ma'am. तो और No, डिहाइड्रेशन ma'am. का टेम्परेचर लिख लो. डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर होता है 443 केल्विन और ये ईथर फॉर्मेशन का टेम्परेचर होता है 413 केल्विन. मतलब अगर अल्कीन चाहिए तो टेम्परेचर ज्यादा रखना चाहिए मुझे. Am I right? मैम डिहाइड्रेशन का कितना बताया टेम्परेचर? एलिमिनेशन का टेम्परेचर है 443 केल्विन और ये सब्स्टिट्यूशन मतलब ईथर फॉर्मेशन का टेम्परेचर है 413. तो ईथर बनता है 413 पे और अल्कीन बनता है 443 पे. ये टेम्परेचर्स नोट डाउन करना. Ma'am. हाँ, टेल मी. Ma'am, can you repeat for temperature? 443 Kelvin for elimination, that is alkene formation, and 413 for ether formation. Okay, ma'am. Fourth question. D. How many degrees of unsaturation? Option here? D. 2 degrees of unsaturation. Do you agree? Yes. So Yes. what is not the correct possibility here? Can I say ये हो ही नहीं सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता है? DU is more. क्योंकि इसका 3. DU कितना आता है? Yes, so this is not 3. possible.
HOCl gives you what? Cl plus OH minus. प्रोपाइन है अब, पहला अटैक Cl प्लस का होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। पाई बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा? Right side. राइट। तो Cl यहां पर अटैक करेगा, OH कहां पर अटैक करेगा? Carbocation. तो पहला प्रोडक्ट ये है। अभी इधर क्या बोला है? व्हाट इज दिस? एक्सेस मतलब एक और बार ऐड करो, Cl प्लस और OH माइनस। पाई बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट में या लेफ्ट में? Right. Right. तो Cl प्लस वापस उधर जाएगा और OH कहाँ आएगा, बीच में। कैन आई से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा? Why will this be unstable? Two OH groups on the same carbon. तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होके वो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। What is the product here? What is the answer? A. Did you all understand this? Yes, ma'am. But please wait. Ma'am, Yeah, please yeah. wait. Okay, okay. Tomorrow also I have a class with you all, no? 2 hours. Yes. So I think batch 1 I think I have not yet completed ना, पूरा alkenes भी नहीं हुआ है ना अभी तक। Batch 1 anybody is there? मैम दो रिएक्शन बाकी है ना अल्किन का, वो आपने कुछ तो बोला 2 था। रिएक्शंस था आपने बोला था, वो I think करना है फिर हाइड्रेशन बाकी है। alkyne। हाइड्रेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं मैम, नहीं हुआ था। हाइड्रेशन नहीं हुआ है, NBS का भी नहीं हुआ है और डाइमराइजेशन भी नहीं हुआ है। तो 3 रिएक्शन तो अल्कीन के बाकी हैं और फिर अल्काइंस भी करना है ना मुझे। तो बैच 1 में तो वही चलेगा। व्हाट अबाउट बैच 2? बैच 2 तो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड योर्स ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, aromatic started. Aromatic is started. So tomorrow I'll be doing aromatic then with you all. Fine. Yes. और डाउट सेशन और कोई है क्या वापस? नहीं है। No, ma'am. So before your TWT there is no other doubt session? No. No, ma'am. अरे बाप रे। But I would like to keep one then. ले लो मैम, एक ले लो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Which day again will be suitable for you all? Friday. But before that I want you all to try everything, मतलब सारे questions hydrocarbons के। Friday Oh, कितने ma'am, बजे you can हो take in सकता the है? evening. हो जाएंगे मैम फ्राइडे तक। मैम 4:30 इज बेस्ट बिकॉज उसके बाद नहीं होता है। एक सेकंड, मुझे मेरा तो देखना दो शेड्यूल। एक सेकंड रुको, क्योंकि मुझे बहुत लेक्चर्स होते हैं, इवनिंग में भी होते हैं मुझे लेक्चर्स। ओके हाँ, फ्राइडे मेरा इवनिंग में नहीं है, बट मुझे लगता है मैंने एक बैच को बोला है ऑलरेडी फ्राइडे का। ठीक है, वरना फ्राइडे ही रख दूंगी अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं किसी और का तो। ठीक है, फ्राइडे 4:30 विल बी फाइन और 5 o'clock। यस मैम 4:30। 4:30. 4:30। हाँ, आई थिंक फ्राइडे विल बी ओके। ठीक है, सो विल प्लान फॉर फ्राइडे। आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लिया अभी? डन। Okay, now give me the answer for the 6th question. C. Third option. Can I say ये पहले वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा यहाँ का?
हाइपर कॉन्जुगेशन में ये CC बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. डू यू एग्री? Yes, ma'am. इसमें रेजोनेंस है तो ये रेजोनेंस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा यहाँ पर. यस मैम. इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं हाँ. तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसमें है? सी. C. अंडरस्टूड? यस. Yes, ma'am. I think Yes. 7th is a very simple question. D. D. Yes, most substituted alkenes will be the most stable alkene. Answer is option D. जितने alkyl groups होते हैं उतना ज्यादा stable होता है alkene. 8th is again very simple. Alcoholic KOH. Alcoholic KOH के साथ क्या होगा? Elimination. हाँ, Cl यहाँ से जाएगा और H प्रिफरेबली कहाँ से जाएगा? CH2. हाँ, कैन आई से यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, मेजर ये होगा Yes, ma'am. और माइनर यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड. सो व्हाट शुड बी द आंसर? C. C option. Okay. 2-butene. This is 2-butene. This on addition of hydrogen in presence of catalyst gives you what? Butane. Can I say N-butane? Yes, Does ma'am. this have any optical isomers? No, ma'am. ये तुम लोग को टफ लगता है क्या ऑर्गेनिक में? ये रिएक्शंस टफ लग रही हैं? No, ma'am. तो फिर क्यों बोलते हो इतना ऑर्गेनिक को? 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ. This is the 10th question. Alcoholic KOH क्या करेगा? Elimination. एलिमिनेट. Cl यहाँ से जाएगा, H कहाँ से जाएगा प्रेफरेबली? Left. Left. ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा. हाँ. Yes, ma'am. समझा? हाँ. Poor becomes poorer ना, सेटजेफ रूल लगाओगे, करेक्ट? यस. Yes, ma'am. लेक्चर कितने बजे तक है आज? 7:30. Okay. 11th question. Catalytic hydrogenation, you have to look for steric hindrance. जिसका steric hindrance ज्यादा होगा उसका slowest होगा. जिसका minimum steric hindrance है वो fastest होगा. A. Yes, A will have minimum steric hindrance. Can I say D will have maximum steric hindrance? Yes, ma'am. So ma'am, D में maximum है तो ये अल्कीन जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा कैटलिस्ट के सरफेस पे. ये कैटलिस्ट के सरफेस पे जल्दी एब्जॉर्ब होगा. So answer will be option A. Catalytic hydrogenation, you have to look out for steric hindrance. reactivity order A, B, C, D होगा ना? A, हाँ, A, B, C, D, correct. Ma'am, can you repeat your statement? For catalytic hydrogenation, steric hindrance decreases the rate of the reaction. Okay, ma'am. 12th question wrong है, उसमें आंसर आ ही नहीं रहा है. They have given that ozonolysis पे खाली ये प्रोडक्ट आना चाहिए. इसमें ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो खाली ये देगा. अब जो फर्स्ट वाला है वो ये देगा तो सही, ये पार्ट से मिलेगा, बट कैन आई से ये पार्ट भी फॉर्मिक एसिड देगा यहाँ से. Did you try this question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. You got the answer? No. This will not give you only malonic acid. It will give you malonic acid from this part. And from this part, it will give you formic acid. You know ozonolysis how to do, no? Yes, ma'am. Yes. This will also not give you malonic acid. अगर यहाँ पे CH3 की जगह H होता तो ये malonic acid ही देता. Do you agree? हाँ. D अगर आंसर ये है. मॉलिक्यूल होगा तो ये हाँ. ब्रेक होके malonic acid देगा. 2 मॉलिक्यूल्स देगा.
मेलोनिक एसिड के, एम आई राइट? हाँ तो इसको तुम चेंज कर लो, ये मिथाइल ग्रुप हटा दो यहाँ से और आंसर सी कर दो। समझा मैंने क्या कहा? Thirteenth question. 13th is simple. 13th, I think batch 1 will not be able to answer. 13th, we'll do it later. I think batch 2, you should be able to tell me the answer. Batch 2 students. I'm D. Can I say anti-Markovnikov addition है water का? Yes? Have you studied or no? Tell me the fact now. अरे पढ़ाई किया है नहीं किया है ऑर्गेनिक कुछ भी? Nobody is answering also. मैम हम बैच 1 वाले। बैच 1 वाले भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो ऑर्गेनिक? पढ़ते हैं मैम, पढ़ते। What about batch 2 now? पढ़ते हैं। मैम पढ़ते हैं। तो ये हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन याद नहीं था क्या? Hydration is a very important reaction. Sure question, it is going to be there. 14th question, all of you can do it. सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, कहने से यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? Positive. Ring expansion. ये ऐसा हो जाएगा। कितने मेंबर रिंग? 6 members. 6 membered ring with a positive charge on a tertiary carbon. अब H plus निकलेगा, कहना से यहां से या यहां से जाएगा तो सेम ही होगा, डबल बॉन्ड बनेगा इधर। Am I right? Did you understand this? Yes, ma'am. Why did I remove H from here? Why did I remove this H? Why I didn't remove this H? उससे रिंग Poor एक्सपेंशन। becomes poorer. नहीं, मैंने ये वाला H क्यों नहीं निकाला? ये वाला उससे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा ना? रिंग एक्सपांशन थोड़ी करना है मुझे, रिंग एक्सपांशन तो हो गया है। हाइपर Ma'am, Poor becomes poorer. What are you saying, Kashfit? I'm Sedgwick's rule. Sedgwick rule, yes. H will not go from here because poor becomes poorer. It is high time तुम पढ़ना चालू करो। I am really now completely बोलते हैं ना तुमसे मुझे तुम I am losing hopes on you all. If you are going to do like this, I will just give up on your batches. I am telling you. Then let somebody else come and teach you. You all are not studying at all. मतलब ऐसे how much am I supposed to give from this side? 2-4 जन पढ़ते हैं तो बाकी करते क्या हैं? मेडिसिन करना है तो ऑर्गेनिक पढ़ना ही है। We don't have any other options. Fifteenth question, did anybody try? I'll tell you how to do it. Do you know what is Wittig reaction? yes, ma'am. Phosphorus अटैक करेगा और Br को हटा देगा। This is the first step. जिसकी वजह से phosphorus पे चार्ज क्या आएगा?
Plus. अपना लोन पेयर शेयर किया उसने तो प्लस चार्ज आया. Now what is the next step? What are you doing here? Can I say इस पे नेगेटिव होगा और लिथियम पे पॉजिटिव होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is a very, very strong base. It is called as butyl lithium. Butyl lithium. This is a stronger base than soda amide. You know, I've done soda amide with you. What is soda amide? सोडा अमाइड नाम नहीं सुना है? ये देखा है कभी? Yes, ma'am. This is soda amide. This is a strong base. But ये वाला जो है उससे भी strong है. It's a very strong base. Base किसके साथ रिएक्ट करता है? Acid. Acid. ये हाइड्रोजन एसिडिक है. यहां से H प्लस निकलेगा. H प्लस निकलेगा तो चार्ज क्या आएगा कार्बन के पास? Negative. Minus. फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा. ये कुछ देखा है? मैंने ये किया है तुम लोगों के साथ. ये लाइट सुना है? ये लाइट. Yes. Have you got Wittig reaction in front of you? Anybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you have the ylide and you have the ketone here, what is going to happen? अगर ये अल्डिहाइड या कीटोन है और ये आपका ylide है तो हम क्या करते हैं इसमें? We Can I break. say इसका Heat ऑक्सीजन break. हटाते हैं और इसका PPH3 हटाते हैं Yes, ma'am. and we join these two carbon. Yes. Yes. Ma'am. So that is what I'm going to do here. I'm going to remove this oxygen and I'm going to remove this PPH3 and I will join these two carbon. ये वाला और ये वाला with a double bond. तो On कितने membered heating. ring बनेगा? 5. 5 membered ring with a methyl group. Give me the answer for this. A. So ये जो था ये जो दिया है ये formation of ylide है. फिर ylide automatically ketone के साथ react करेगा जो molecule के अंदर है, giving you the alkene. Or did you finish writing this? No, ma'am. 1 minute. I'm late. Remember butyl lithium is a strong base. इसको ऐसे भी लिखते हैं. They give it like this also. NBuLi. This tells you N-butyl lithium. Got it? Yes, ma'am. Tell me once you're done. Done, ma'am. Okay, finished all of you? Done, ma'am. Zero dipole moment किसका होगा? Trans. Trans. 1,2-dichloride. 1-chlorobutane with alcoholic KOH will give you what? E2 से जाएगा. 1-butene. Butane यहाँ से H यहाँ से but1ene. Correct? Yes, ma'am. Yes.
अब टेम्परेचर कौन सा दिया है यहाँ पर? 443 elimination. हाँ, कहना है अल्कीन बनेगा, प्रोटोनेशन होगा, ये निकलेगा, कार्बन पे मैम चार्ज डी क्या आएगा, Positive. उसके बाद क्या होगा, Ring expansion. रिंग मतलब एक्सपेंड 6 मेंबर रिंग बनेगा। हाँ मैम Yes, फिर H ma'am. प्लस कहीं से भी C. निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो आंसर क्या होगा? C. C. हाँ। 19 क्या पूछा है? Hydrogenation. हाइड्रोजनेशन में हम क्या चेक करते हैं? Steric hindrance. कहना है इसका स्लोएस्ट होगा पहले वाले का, Yes, ma'am. और सेकंड का फास्टेस्ट होगा। ऑप्शन ए। Option 1. 1. Did you all understand this? Yes, ma'am. Yes. See, you need to talk to me and tell me where you are finding things difficult. The only problem coming up now is you are not getting time to revise the things. I know that, because plenty of work is going on together. Am I right? यस मैम Yes. ma'am. Not only one subject, क्योंकि तुमको बहुत सारे साथ में आ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में कैसे चल रहे थे तुम लोग? एक टॉपिक कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर किया 2 महीना 3 महीना। एम आई राइट? यस मैम Yes, ma'am. Very slow. 15 चल रही है, 15 लेक्चर्स, 20 लेक्चर्स ले लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के। एम आई राइट? हाँ Yes. और अब क्या हो रहा है? अब आ रहा है 4-4 5-5 चैप्टर साथ में। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर 4 चैप्टर चल रहे होंगे, फिजिक्स में ऐसा हो रहा होगा, उधर चल रहा होगा अलग, बायो के अलग। I can understand, but there has to be some way to manage it. See, this happens every year. It is Ma'am, not plus only with college you. lectures. College पे why you मैम are taking कॉलेज so तो much स्टार्ट pain भी for नहीं किया है doing college work? I don't know. मैम नथिंग इज college का स्टार्टेड work नहीं, आल्सो वो उनके सुबह Ma'am, time pass is done in it. College, why you want to just मेरे हिसाब से तो I don't think कि college का इतना कुछ अभी importance देना पड़ेगा आपको। नहीं मैम, ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब सुबह उसको अटेंड करना पड़ता है Ma'am, ऐसा। 6 hours मैम रहता है वो भी। अटेंडेंस भी तो अटेंडेंस का फिर भी बाद में लिंक आ जाता है, 75% बट अटेंडेंस कुछ हाँ, तो इम्पोर्टेंट है ना 75% ही अटेंड करो ना। Then why you want to attend everything? मैम ये होता है अगर Ma'am, कभी छोड़ parents दिया और also. कुछ ये लोग ने रिड्यूस सिलेबस या कुछ तो बोल दिया इम्पोर्टेंट, तो वो मिस हो जाता है, वो तो रिकॉर्ड भी नहीं होता। लाइक नहीं तो वो आपस में एक ग्रुप बना के यू कैन से ना कि आज टीचर ने क्या करवाया, वो ग्रुप पे डाल दो। हम जैसे आज सुबह तो से सेल्फ स्टडी सपोजिंग टुडे 1 पर्सन इज अटेंडिंग, अब से ग्रुप में से 4 लोगों ने अटेंड किया आज, तो वो 4 फिर नेक्स्ट लेक्चर अटेंड मत करो, फिर नेक्स्ट 4 को जैसे अटेंड करो, एंड यू पुट इट ऑन द ग्रुप कि क्या टीचर ने बताया था, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बताया, तो यू कैन ऐड इट टू द ग्रुप। दिस इज हाउ यू कैन हेल्प ईच अदर। दैट इज व्हाट इज माय सजेशन। बाकी आप लोगों का है, क्योंकि कॉलेज लेक्चर्स तो आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स यूज्ड टू अटेंड आल्सो। पहले तो जो आपके सीनियर्स लोग हैं वगैरह, कॉलेज लेक्चर्स हार्डली दे यूज्ड टू अटेंड, बिकॉज अगर आप यहाँ पर जो हम करा रहे हैं वो कर रहे हो, तो योर कॉलेज इज अ सबसेट ना ऑफ व्हाट वी डू हियर, कॉलेज स्टडीज। एनीवे चॉइस इज सुबह योर्स। से टाइम ही नहीं मिला है सेल्फ स्टडी का। 3:30 तक कॉलेज लेक्चर्स था, उसके बाद सब डाउट सेशन शुरू हो गए। हाँ, बट देन अगर अभी आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो व्हेन आर यू प्लानिंग टू डू इट? दैट आल्सो यू टेल मी, बिकॉज सिलेबस खत्म होते होते नवंबर हो जाएगा। नवंबर के बाद तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि भाई तुम नीट के लिए ही पढ़ना है, नीट के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि नवंबर के बाद यू आर सपोज टू स्टार्ट योर बोर्ड का स्टडीज। एम आई राइट? मैम फाइंडिंग डिफिकल्ट इज लाइक नहीं, मतलब कि समझ में आता भी है आपके लेक्चर में, उसके बाद अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे बुक खुले हैं, बट देन जब आप कुछ पूछ लेते हो ना, तो इट्स लाइक कि क्या अप्लाई होगा वो जल्दी से क्लिक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं अभी हमारे पास, और हम लोगों को भी ना सोचने में टाइम लगता है कि कौन सा, मतलब स्पेशली मेरे साथ ये होता है कि एप्लीकेशन जो है ना मैम, वो जल्दी से क्लिक नहीं होता है कि कौन सा अप्लाई होगा, अगर अल्काइन है तो, अल्कीन है तो, अल्केन है तो, ऐसा। अच्छा, मैं नोट्स में, इनफैक्ट नोट्स में मैं तुमको लिखवाती हूँ सब कुछ,
अभी जैसे हाइड्रोजनेशन में मैंने तुमको लिखवाया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस से रेट निकालते हैं। अग्रीड मैम, अग्रीड, वो सब भी होता है, लेकिन कहते हैं ना वो जल्दी से अप्लाई के लिए ना क्लिक नहीं हो पाता है, और बहुत सारे रूल्स भी लग जाते हैं। अगर ये वाला रूल चलिए हमने लगा भी दिया तो उसमें कुछ अलग आ जाएगा कि वो इस नहीं, वजह अलग से। नहीं आएगा माय डियर, इसलिए मैं वो लिखवा देती हूँ वहीं पे। जो मुझे पता है कि रूल फॉलो हमेशा होगा, मैं वो खास लिखवा लेती हूँ तुम लोगों को। तो वो चीजों के लिए तुमको कुछ और देखना ही नहीं है। फिर आई मैम मेक यू कुछ राइट दोस थिंग्स क्लियरली। देन sp2 हाइब्रिडाइज आ जाता है, देन कार्बोकेटायन बन जाता है, वो इंटरमीडिएट में चला जाता है, वो ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में। बस यही है। ठीक है, अभी फिलहाल देयर हैज टू बी सम वे आउट, एम आई राइट? यस मैम। एंड मैम ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, कर पा रहे हैं, या मतलब प्रैक्टिस टाइम नहीं दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं हम, बिकॉज लाइक मैं तो दे पा रही हूँ टाइम। बस यही है कि थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, but then you know the third track is also going to start very soon. यस मैम। Ma'am, it's just that like when we started solving hydrocarbons का भी booklet, so we opened the notes and we were like notes के through भी देख रहे थे, and then we were solving each questions, तो थोड़ा slow times आ रहा था। एग्जैक्टली। पर वैसे पढ़कर भी अगर आप कर रहे हो, पढ़कर भी आप करोगे तो आपको नोट्स तो रेफर करना ही पड़ेगा फिर से। Yes कभी ma'am, like कभी it's ऐसा just लगता है बहुत initially डिफरेंट हो थोड़ा गया। time लगता है। तो मैम आप ये बताइए ना कि हम हमारा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल देखा हमने या ये रिएक्शन देखा हमने, तो हमें फटाक से ये चीज क्लिक होनी चाहिए, बट वो चीज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा ना लगता भी है कि अरे हो गया, अच्छा, पर हमसे नहीं हो पाया। इसीलिए आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद योर। यस मैम। क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो हाउ यू आर सपोज टू थिंक, दैट इज हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग योर। एम आई राइट? यस मैम। I don't think many of the teachers are taking every question in the booklet. Are No, all the ma'am. teachers taking every question No, in the no, booklet and ma'am. solving? I'm just doubt. No, ma'am. हाँ, so that is why, you know, because organic को समझना कौन सा रूल लगाना है, कैसे करना है, because you are in the learning phase. एक बार ये learning phase से तुम आगे निकल जाओगे, then it will become simple for you. But initially, see, GOC I made you solve everything. Yes, मतलब ma'am. I solved it with you. Am I right? मैम नो डाउट फ्रॉम योर साइड, इट्स जस्ट दैट कि हो जाता है यहाँ से, मतलब अपने साइड से थोड़ी सी कुछ लाइक कहते हैं ना, हो गई है कमी। कमी नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप लोगों को भी इतने सब्जेक्ट्स आ गए हैं अभी साथ में, और ऊपर से ऑनलाइन लेक्चर्स। जब टीचर के साथ आप बैठते हो, टीचर के साथ आप चीजें करते हो क्लास में, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग देन व्हाट इज गोइंग ऑन। नाइदर यू हैव सीन मी, नाइदर आई हैव सीन यू, आई डोंट नो मैं किससे बात कर रही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाम से एक बार पता है कि चलो ये दिस पर्टिकुलर पर्सन, जैसे ये कशफित है, जैसे ये मिताली है, जैसे ये रिया है एंड ऑल दैट। नाम से आई कैन से, बट आई डोंट नो यू ना पर्सनली, हैवंट एवर सीन यू। एक अलग अटैचमेंट होता है, एक अलग बॉन्डिंग होता है जब टीचर और स्टूडेंट्स क्लास में रहते हैं, तो वो बॉन्डिंग से बच्चों को भी समझ में इजीली आता है, और हमको चेहरा देख के पता पड़ता है कि बच्चे को समझा नहीं है, समझा है कि नहीं। गॉट इट? अभी यहाँ पर तो आई कांट सी यू, नाइदर कैन यू सी मी, मैं बस बोलती रहती हूँ जो भी है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट आई डोंट थिंक कि ये साल भी दिसंबर तक तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस ऑफ यू कमिंग टू कॉलेज। और दिसंबर निकल गया तो उसके बाद तो वैसे भी स्टूडेंट्स डोंट कम टू कॉलेज बिकॉज दे आर देन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। मैम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम जो नोट्स में पढ़ते हैं फिर सॉल्विंग करते हैं तो वो कुछ अलग ही लगता है। ठीक है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ। ठीक है, अभी ध्यान दिया करो, और जहां तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके बाजू में लिखा करो कि कैसे सॉल्व किया है। गॉट इट? खाली मैं बोलती रह रही हूँ और तुम लोग हाँ हाँ बोल के समझ के कहना। इससे अगर एक ये तुम 8 महीने के बाद ये बुक लोगे और बिगर कुछ लिखे हुए तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तुमको याद रहेगा क्या मैंने क्या कहा था 8 महीने पहले? तो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन एवरी क्वेश्चन के बाजू में लिखो जो मैं बोल रही हूँ, ये कौन से वजह से ये आंसर आया है, यू आर सपोज्ड टू राइट दैट रीजन। गॉट इट? ताकि आप जब एग्जाम TWT के पहले आप जब रिवाइज कर रहे हो
You have to revise through the booklet also. Booklet में अगर सब लिखा होगा, reasons लिखे होंगे, it will be very easy for you to revise also and get the answers. ठीक है? क्योंकि TWT में भी सब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ एकदम अलग नहीं आने वाला है. रिकॉर्डिंग किसका नहीं मिल रहा है सिद्धि? रिकॉर्डिंग मैं तो भेजती हूँ हमेशा. नहीं मैम, कॉलेज का नहीं मिलता. अच्छा अच्छा, कॉलेज का नहीं मिलता है. Kashfit, yes, it is your choice. As I said, skipping college, क्योंकि पहले तो बच्चे जब ऑफलाइन लेक्चर्स होते थे, फिजिकल लेक्चर्स, बच्चे हार्डली दे यूज्ड टू अटेंड. 75% देखते थे कि हाँ 75% है. तो हफ्ते में कितने लेक्चर, हफ्ते में कितने दिन होते हैं आपको लेक्चर? मैम 2 दिन होते हैं, 5 अच्छा. या 6 लेक्चर्स होते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को. अच्छा, 2 दिन ही होते हैं क्या लेक्चर्स? यस मैम. और बाकी के दिन सारे पेस के होते हैं? नीट के. यस मैम. Yes, ma'am. देखो, अगर 6 नहीं अटेंड करना है तो 5 अटेंड करो, 4 अटेंड करो ऐसे. But ma'am, on that day we don't get time for self-study. That day you don't get time to? मैम ट्यूसडे थर्सडे मिलता ही नहीं है Because सेल्फ उसके स्टडी बाद करने. डाउट लेक्चर खाते जाते हैं. अच्छा, उस दिन डाउट लेक्चर भी होते हैं? Yes. पहले फिर भी होता था, अभी तो दोनों क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो गया. कॉलेज का भी आधा घंटा पहले शुरू होता है और नीट का भी आधा घंटा पहले. हाँ मैम. क्योंकि अभी लेक्चर टाइमिंग बढ़ाए गए हैं ना. अभी दो घंटे के लेक्चर है ना, पहले इट यूज्ड टू बी ओनली 1.5 hour. The reason is the syllabus is going slow and we have to pick up on the syllabus. 1.5 hour is not. पहले जब कॉलेजेस फिजिकल लेक्चर्स होते थे तब ऐसे ही होता था. We used to have 2 hours lectures only. I don't know why online के उन्होंने 1.5 hour रखे थे. Because 2 hours में ही, in fact 3 hours के भी होते हैं lectures, physical lectures. We used to have in 2 batches. जैसे अभी मेरा 3 batches में होता है एक दिन में. But that time we used to have 2 batches and 3 hours. 3 hours में काफी चंक हो जाता है बड़ा पोर्शन का, इसलिए पोर्शन स्मूथली होता था. अभी ऑफलाइन लेक्चर्स अच्छे थे, ऑनलाइन में आई डोंट नो, इवन आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. मैम आईज को भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है. हाँ, इसको भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है. हाँ, आईज को भी तो पड़ता ही है ना. अभी मुझे दिल्ली वगैरह के बैचेस भी दे दिए हैं, तो मेरा लेक्चर सुबह चालू होता है 7:30 से ऑलमोस्ट रात को 8 बजे तक डेली है ऑलमोस्ट. बीच में 1-2 घंटे का गैप मिलता है खाली. Ma'am, but starting में why did they keep it like slow? They took like a month for one chapter and यस The मैम same बहुत reason स्लो हुआ ना. था स्टार्ट. अच्छा, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर. हाँ मैम, मैम, एटॉमिक सारे स्ट्रक्चर तो starting अगर हम chapters फास्ट जाते थे. तो आपको समझता ही नहीं बच्चा. नहीं मैम You फास्ट wouldn't. मतलब बहुत फास्ट नहीं, बट 1 महीना बहुत ज्यादा हो गया एक चैप्टर. मैम वीक में सिर्फ 2 ही दिन थे लेक्चर. And ma'am, for biology also. बायोलॉजी के क्या क्या? Kinematics 3 months. अच्छा, 3 months. They took like बायोलॉजी में long एक time. सिंपल सा चैप्टर, उसको कुछ 1.5 मंथ लगा था. वो क्लासिफिकेशन किया होगा ना आपने? नहीं मैम, लिविंग वर्ल्ड. अच्छा, लिविंग वर्ल्ड. बिकॉज दैट टाइम 10th छोड़कर आए हो आप लोग, समझ में थोड़ा धीरे धीरे आएगा. दैट इज व्हाई वी गो लिटिल स्लो. हमको टीचर्स को बोला जाता है गो वेरी स्लो. उसके बाद धीरे धीरे जब तुम लोग को समझ में आने लगेगा, देन वी स्टार्ट पिकिंग अप ऑन द. ठीक है, पर अभी जो भी है वी हैव टू कंप्लीट एंड वी हैव टू डू इट. आयनिक इक्विलिब्रियम 3 months. आयनिक इक्विलिब्रियम तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम लग गया. आई डोंट नो व्हाई. मैम वो बीच में सर का भी फैकल्टी चेंज हुआ, फिर सर भी बीमार थे इसलिए. अच्छा अच्छा. वरना वैसे ये टाइम तक फिजिकल हमेशा खत्म हो जाता है सितंबर तक. ठीक है. रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. कैन आई से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर? अच्छा, 9:35 7:35 हो गया. यस जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस 20th क्वेश्चन, देन आई एम लीविंग यू ऑल. इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन. हाँ, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर से यू हैव टू चेक. कैन आई से सबसे इजीली बनेगा ये वाला कार्बोकैटायन? यस मैम. Yes, ma'am. बेंजाइलिक. एम आई राइट? Yes. के बाद 2 डिग्री बनेगा. 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री,
और फिर कैन आई से यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो ये लीस्ट Yes. स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा. So what is the answer for this question? Option B. B. Yes, fourth will be the fast and second will be the least. मैम 19 वाला भी रिपीट करेंगे. 19th wala, it is hydrogenation na, hydrogenation ke liye steric hindrance hua hai. Okay. This is the least steric hindrance, so fastest reaction, and this has the highest steric hindrance, so slowest reaction. Got it? Yes, ma'am. Chalo, now I'll see you all tomorrow, and I'll try to arrange one lecture on Friday for doubts. Doubts nahi, I'll continue this solving the booklet. Okay. Ananya, which question are you talking about? Yes, Kashfit, bye. Ananya, which question? Bye, ma'am. Yeah, bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. You're talking about the Thank you. 20th? 20th में vinylic नहीं बनेगा ये, 1 degree बनेगा ये. Okay, ma'am. क्योंकि pi bond shift हो जाएगा ना, तो फिर 1 degree बनेगा. Okay. Yes, ma'am. चलो, I'm ending the class. ठीक है? Bye.